Yeah, it's been great. Whatever areas we wanted to train, we have trained, and still, we are discussing and we are working on it. So it's been great. At the same time, last 1.5 years, we have been to a lot of places to play matches and understand the modern hockey and international hockey. So thanks to Hockey India, Sai and Ananda Coca-Cola India Foundation, who gave us that opportunity and exposure to the girls to understand the modern hockey and learn and groom and get ready for the World Cup. So I'm very confident and happy the way we have trained and the way we have shaped up for the World Cup. Sir, you just talked about the support system. Could you please elaborate on what type of support they are providing the Coca-Cola India Foundation and the Anandina? See, basically, when it's all the foreign exposure what we get. For that, it is very important for from the players' point of view and from team point of view, because when you go abroad and play and understand the modern hockey, for example, if you're going to Europe and you're playing against European teams, so you understand what is the European style of playing. And same time, when you go to Australia, it's two different kind of hockey. Recently, we've been to Australia. Australia plays a very, very different kind of hockey as compared to Europe. And similarly, a few months back, we went to Argentina. So Argentina plays a different kind of hockey as compared to Australia and Europe. So when you get such kind of exposure and trips to travel and play against such teams, it really really gives you kind of understanding of modern hockey. And then accordingly you train. Once you play with Argentina, then you come back and then you train accordingly. And then slowly you go to Europe, and then you come back and you train according to European. And then recently we went to Australia in September, and then so these kind of trips really really help you to understand the requirement of modern hockey. And also, when if we'll be playing against them in World Cup, so how we are going to counter them. So those sort of understanding is very important. And for that, I would say Sai, Hockey India, and another Coca-Cola India Foundation really helped us to give that exposure of allowing us to go and playing matches. So those kind of help and support is very very important for any team. I would say in any sport for that matter, and especially they have done it for us. So we are really grateful for that. आंसर अगर हम बात करें तो अब वर्ल्ड कप ऑब्वियसली एक हाई प्रेशर टूर्नामेंट रहता है, सबसे अलग अलग तरीके का प्रेशर उसी में रहता है, तो एक टीम से एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है, किसी पर्टिकुलर चीज में भी बढ़ जाएगी। तो उसकी तरफ अगर हम लुक फॉरवर्ड करें तो वो क्या रहेगा? ऑब्वियसली ट्रॉफी जीतना तो रहेगा ही, बट उसके अलावा भी किसी चीज में कुछ खास जिस पे ध्यान रहेगा? एंड ज्योति, उसके बाद आपसे ही मेरा सवाल है, कुछ पर्सनली एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, किसी तरफ आप देख रहे हो, आपका एक माइलस्टोन जो आप अचीव करना चाह रहे हो इस वर्ल्ड कप में? See, as a junior team coach, my main, of course, there are two tasks for me. One, of course, is play well in the World Cup. Of course, everybody wants to, finish on the podium, and so is my target. Also, is that. But at the same time, as a junior team coach, my one more task is that I have to produce. I have to make a chain for the senior team. I have to produce the players who can, go to senior team and play for the senior team and win medal for the country at the highest level in the senior level. So my task here is two tasks, not just one, to play well in the World Cup. Of course, produce the maximum number of players for the senior team so they can play in future for the national team. ज्योति, एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, आपका कुछ पर्सनल जिस तरफ आप देख रहे हो, एक माइलस्टोन, एक लैंडमार्क? मेरी साइड से बस ये है कि एज अ प्लेयर and as a captain, not just as a captain but as a player also, if we win a medal in this World Cup, it is very very much important for us, because the entire team mindset and our staff, everyone is having the same mindset that we have to finish on the podium, because it will help the Indian women's hockey to grow. As our coach said, we are also preparing not just for the Junior World Cup, we are also looking forward for playing in the seniors, and how better we can get in the juniors, that so that we, when we will go in the seniors, and we would definitely put India on the best, like in hockey.
जब मैंने सीनियर में डेब्यू किया था, ऑफ कोर्स मतलब वहाँ पे मेरे से बहुत ज्यादा सीनियर प्लेयर्स थे, बहुत एक्सपीरियंस थे, बट उन लोगों ने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि आई एम अ न्यू कमर मतलब इन द टीम, और मुझे वो लो फील कि नया है। बट दे वर ऑलवेज देयर फॉर मी। वो लोग मुझसे बात कर रहे थे कि यू जस्ट गिव योर बेस्ट, वी आर देयर फॉर यू, नो मैटर व्हाट। अगर कुछ गलती भी हो रही है, कुछ भी है, एंड इवन दो मतलब मेरे पीछे सारे थे, जूनियर से भी सारा जितना भी स्टाफ था, इनफैक्ट सीनियर का भी जो स्टाफ था, देवर देयर कि कोई डरने वाली बात नहीं है इफ यू आर प्लेइंग फॉर द कंट्री। बट यस, आई वुड से दैट इट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस, और जिसने मुझे हेल्प किया है जूनियर में भी बीइंग एज अ कैप्टन। और आप बाकी लोगों को भी इससे हेल्प कर सकते हो उनको बताने के लिए, या कि किस लेवल पे इंटरनेशनल हॉकी होती है। एंड अभी आपका एक ऑस्ट्रेलिया का टूर भी था, थोड़ा सा मिक्स था, लेकिन वहां से भी आपने कुछ टेक अवेज रहे होंगे टीम के लिए, वहां से भी कुछ लर्निंग्स रही होंगी। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। और अब गोइंग फॉरवर्ड आप किन चीजों पे पर्टिकुलरली ज्यादा ध्यान देगी टीम, कौन से ऐसे फैक्टर्स रहेंगे विच कुड मेक अ चेंज, थोड़ा सा उसके बारे में भी। ऑस्ट्रेलिया में जो हम लोगों ने मैचेस खेले हैं, डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन अटैकिंग पार्ट ऑल्सो, बट जो हमारा मेन कंसर्न है, जिस पे हम बहुत ज्यादा काम भी कर रहे हैं, वो हमारा डिफेंसिव पार्ट है। और जो आपने ऐसे पूछा कि अपकमिंग भी हमारा उसी के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, कितने हम डिफेंसिवली बेटर हो सकते हैं, और हम उस पर बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं। एंड आई नो दैट वी आर गुड एट इट, बट एट द सेम टाइम जितना हम अपने आप को डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वी वुड बी बेटर एज अ टीम ऑल्सो। More dangerous as a team, I would say. डेफिनेटली सर। एंड सर नेक्स्ट सवाल मेरा आप ही से, जैसे इंडिया का पूल सी है जिसमें कि जर्मनी और आयरलैंड जैसी थोड़ी सी टफ टीम्स भी हैं वो, तो उनको टैकल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उनको वहां से नेविगेट करने में? क्योंकि फिर अगर वही बात है कि अगर पूल में फिर प्रेशर ना पड़े, तो वहां से उनसे निपट के आगे जाने के लिए, थोड़ा उनको डोमिनेट करने के लिए क्या टीम किस पे फोकस करेगी? See, as you know that it's a World Cup, and all the 24 teams would be equal. So I won't I don't want to say that ये team ऐसा है, ये team ऐसा है. For me, I will be going one match at a time, one day at a time. As I know, Germany is a hockey playing nation. In their country they play really well hockey. The structure is quite good in terms of hockey. So for me, all the teams are good. But if you talk about Germany or Ireland for that matter, because the European teams, European hockey, like different hockey है. So yes, we have been we've been training उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं. And also we know that कि इसके बाद आगे जाने के बाद भी we either will be playing against Australia or Argentina or any European team for that matter. So we have enough experience हमको किसकी तरह से खेलना है. And at the same time in the pool matches also we have enough experience कि जर्मनी के साथ कैसे खेलना है और आयरलैंड के साथ कैसे खेलना है. But again, having said that, फर्स्ट हमको हमारा काम करना है. व्हाट जैसे ज्योति ने बोला, हम जिस चीज में अच्छे हैं हमको उस पर ध्यान देना है. अगर हम वो सही से करेंगे तो वी कैन बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर एनी अपोनेंट फॉर दैट मैटर. एंड ज्योति, मेरा एक सवाल आपसे ये भी था कि जैसे कैप्टेंसी के साथ साथ थोड़ा सा रोल, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है, तो आप एज अ कैप्टन उसको किस तरीके से टैकल करते हैं? उसको किस तरीके से और स्पेशली जब हाई प्रेशर सिचुएशंस रहती है, आप किस चीज पे ध्यान रहते हैं? आपका क्या मैसेज होता है टीम के लिए? आप कितना फोकस्ड रहते हैं उस टाइम पे? अपने आप को कैसे आप मोटिवेट करते रहते हैं? आई गेस मोटिवेट करने के लिए वर्ल्ड कप हमारे लिए ऑब्वियसली बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट है, उसको जीतना ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है पूरी टीम के लिए। तो एंड आई नो कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे इतने मेच्योर हैं, दे नो कि कैसे परफॉर्म करना है, कैसे करना है, तो इट इज़ नॉट अ प्रेशर ऑन मी। और इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा टीम को साथ लेके चलने वाला भी काम नहीं होता है, क्योंकि हमारी टीम दे आर रियली गुड नोइंग ईच अदर। सो आई गेस मतलब इतनी ज्यादा कोई मेरे लिए प्रेशर वाली बात नहीं है, बट डेफिनेटली जहाँ जब हम सारे एक साथ होते हैं तो वी आर रियली गुड। तो आई वुड से कि मतलब इन द वर्ल्ड कप देयर इज नो मच प्रेशर ऑफ कोर्स, बट वी हैव अ सेम माइंडसेट फॉर इट। एंड कंसिडरिंग अब आपका जो जर्नी है वो काफी बढ़ता जा रहा है अच्छे से, एंड यू हैव बीन इंस्पायरिंग अ लॉट, बट इज देयर एनी पर्टिकुलर प्लेयर दैट यू लुक अप टू एंड यू हैव ऑलवेज बीन लाइक कि हाँ, दिस इज द प्लेयर दैट आई फॉलो, आई वांट टू बी लाइक हिम? नॉट वांट टू बी लाइक हिम, बट या, यू फॉलो.
I would say I don't have that particular one person in my life. Like since when I've started playing, there were many. Like when I was a kid, I started seeing my sister playing hockey, so I followed her. And later on, when I used to play nationals, then I had a different idol for me. Now, as I'm playing at international level, so I have many of them like differently. So I won't give a name for it, but yeah, there are many people to whom I look up. एंड वन वर्ड जो आपका थोड़ा सा भी कोचिंग रहा, आपके जो नेशनल लेवल के कैंप्स वगैरह रहे, वो किस तरीके के गए, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। या इट्स बीन ग्रेट। अभी तक जितने भी हमने ट्रेनिंग कैंप्स किए हैं, टूर्स किए हैं, एंड वट एवर मैचेस वी प्लेड और वट एवर ट्रेनिंग सेशंस वी हैड इट हियर इन बैंगलोर और अब्रॉड, it was great. Whatever we wanted to achieve, we could achieve in terms of progression, in terms of upgradation. So yes, काफी अच्छे गए हैं। At the same time, I know जो लड़कियां जिन्होंने जितना डेवलप किया है, अपने आप को इम्प्रूव किया है, they are quite capable also to perform at the World Cup, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अपना प्रोग्रेशन दिखाया है और अपना डेवलपमेंट दिखाया है ट्रेनिंग सेशन में, और जो भी जितने भी टूर्स हुए हैं रिसेंट पास्ट में, जो भी हमने मैचेस खेले हैं अगेंस्ट एनी टीम, इंटरनेशनल टीम, तो जो जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेशन उन्होंने दिखाया है, बेस्ड ऑन दैट आई एम वेरी हैप्पी जिस हिसाब से हमारा प्रोग्रेशन हुआ है। एंड ज्योति, आपका ओवरऑल नेशनल लेवल कैंप्स का एक्सपीरियंस और जो भी ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स थे, जो भी कोचिंग था, ओवरऑल उसका एक्सपीरियंस कैसा था? आई गेस हमारा पूरी टीम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि जो हम यहाँ पे ट्रेनिंग, जो हम बैंगलोर में ट्रेनिंग करते हैं और जब हम टूर्स पे जाते हैं, तो हमारा एक ही टारगेट होता है कि जो हम ट्रेन कर रहे हैं वो वहाँ पे जाके हम कर पा रहे हैं या नहीं, कर एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे भी हम लास्ट ऑस्ट्रेलिया टूर में गए थे, जो हमारी प्लानिंग थी, हम उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे थे, और हमने वहां से बहुत कुछ सीख के भी आए हैं, जो हमने वापस यहाँ पे बैंगलोर में आके उसके ऊपर ट्रेन किया है। और काफी ज्यादा मेहनत करी है उसके ऊपर, नॉट ओनली ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड ऑल्सो हम मीटिंग्स करते हैं, उसमें हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो आई गेस जैसा कोच ने बोला कि हम उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, एंड वी आर डेफिनेटली लर्निंग। और जो भी हमारे अभी भी जो रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं, वी आर कवरिंग ऑल द एरियाज। सो आई गेस जो हमारी जो भी हमारा अभी तक का सफर था, इट वाज गुड।